topic is taking root and bearing fruit. आज का विषय है जड़ पकड़ते जाना और फलवंत होते जाना. All of us are called to bear fruit in whatever we do. ब्रदर रिपीट करना, सिग्नल चला गया. All of us are called to bear fruit in whatever we are called to do. हम सबको फलवंत होने के लिए बुलाया गया है, जिस भी काम के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया उसमें. And for any tree in agriculture, any tree to bear fruit, it must be rooted into the ground and the roots must be strong. और कोई भी फल, अगर पेड़ उसको फलवंत होना है तो उसकी जड़ जो है जमीन में नीचे तक जानी चाहिए और मजबूती से होनी चाहिए. For us to bear fruit in our Christian life, it must come from being rooted in Christ. और हम जो मसीह जीवन में अगर हमें फलवंत होना है तो हमें मसीह यीशु में जड़ पकड़े हुए होना चाहिए. Sometimes Christians can be very superficial in their faith. कई बार मसीह लोग अपने विश्वास में बहुत ऊपर छिछले होते हैं. We receive Christ as Savior and Lord, हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता प्रभु ग्रहण करते हैं, but He is truly not Lord of every aspect of our lives. पर वास्तव में हमारे जीवन के हर पहलू में वो हमारा प्रभु नहीं होता. For example, in the church in Colossae, the Christians there were little lukewarm and they were actually guilty of one particular trait called syncretism. और कुलूसी की जो कलीसिया थी वो उनमें भी ये समस्या थी, वो गुनगुने थे और उनमें एक सिंक्लनिम का नाम का एक उसमें एक दोष था. No. Syncretism is a quality of certain Christians. और सिंक्रेटिज्म जो है ये कुछ मसीहों में ये एक गुण होता है. It is equating the Christian faith with other philosophies and other religions. It is equating the Christian faith with other philosophies and religions. और वो दूसरे धर्मों के साथ मसीह धर्म की तुलना उसको बराबर बनाना की बात करते हैं. And in Colossae, there were both the Jewish Christians and the Gentile Christians. और कुलुसियों में यहूदी मसीह भी थे, अन्य जाति मसीह लोग भी थे. And some of these Christians were trying to equate the Christian faith with other philosophies, like it happened in India also, that all religions are same, everything is same, you can follow any path you want. That's called syncretism. और जैसे और ये लोग जो थे यहूदी और ये कर रहे थे कि सारे धर्म जो है वो एक ही बात है. ऐसे भारत में भी बताते हैं कि सब धर्म की बात एक ही है, सब एक ही शिक्षा है. उस तरह से ये सब धर्मों को एक उसमें मानते थे. And the Apostle Paul wrote to the Colossians in chapter 2, verse 6 and 7. और पौलुस जो है कुलुसियों की कलीसिया को लिखता है 2 अध्याय 6 और 7 आयत में, Just receive Jesus Christ as Lord, continue to live in Him, rooted and built up in Him, strengthen the faith as you are taught. और जैसा तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ. जैसा तुम सिखाए गए वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो. And overflowing with thankfulness. और धन्यवाद से उमड़ते रहो. See that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy. और चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा आहेर न कर ले, Which depends on human tradition rather than on Christ. जो मनुष्य की परंपराओं, मत और संस्कार और आदि शिक्षाओं के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं. Verse 9 and 10. For in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form, and you have been given fullness in Christ. 9वीं और 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है. Fullness in Christ means completeness in Christ, maturity in Christ. और उसमें भरपूर होना मतलब उसमें परिपक्व हो जाना और पूरी तरह से संपूर्ण हो जाना. For us to grow into maturity, it's important that we be rooted and built up in the Lord Jesus Christ. Not in any church, any fellowship, but in the Lord Jesus Christ. और हम जो है, हमें जो बुलाए गए, हम जो है, हमें मसीह यीशु में परिपक्व होते जाना है, परिपक्व हो जाना है और किसी कलीसिया में नहीं, पर उसके लिए हमारे को किसी कलीसिया में नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़े हुए होना चाहिए. One test of whether we're rooted in Christ or not is whether when terrible things happen in the church, in the leadership in the church, does our faith get affected? और इसका एक बड़ी अच्छी पहचान है कि जब कलीसिया में कुछ बात होती है, कुछ गड़बड़ होती है, तो क्या उससे हमारा विश्वास प्रभावित हो जाता है? When the leadership fails us, when the leaders in the church go away from God and they fall from grace, does it affect the faith of the people in the church?
जब जब अगुवे भटक जाते हैं, वो अपने विश्वास में से कमजोर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो क्या हम उससे, हम कलीसिया के, हम जो हम अंग हैं, लोग हैं, उनके विश्वास में प्रभाव पड़ता है? If their faith is affected, it means the faith is misplaced. अगर हमारा विश्वास प्रभावित हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा विश्वास जो है वो सही जगह नहीं है। In the Old Testament time, when the priests, the prophets, the leadership failed, the people failed. They went away from God. और पुराने नियम में हम देखते हैं, जब याजक, प्रधान और जो राजा, ये लोग जब परमेश्वर से भटक जाते थे, तो पूरे लोग भी जो थी, प्रजा भी जो भटक जाती थी। Leadership were close to God, people were close to God. और जब अगुवे परमेश्वर के साथ होते थे, तो लोग भी परमेश्वर के नजदीक होते थे। And the priesthood determined sometimes the way the people lived in the land. और उस समय में जो याजक जिस तरह से होता था, उस जगह पे उसी तरीके के लोग भी उसी तरीके से चलने लगते थे। Today we have a perfect high priest who's entered the Holy of Holies. There's no excuse for us to go away from God. अब हमारे पास तो एक महायाजक है जो अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर गया है। अब हमारे पास कोई बहाना नहीं है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। The church might let us down, leadership in the church might let us down, but Christ will never let us down. कलीसिया हमें नीचा कर सकती है, कलीसिया के अगुवे हमारे को नीचा कर सकते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह जो हमारा है, वो हमें कभी नीचा नहीं होने देगा। Psalm 94 verse 14 says, God never rejects his people. He will never forsake his inheritance. और भजन 94:4 में लिखा है कि परमेश्वर जो है अपने लोगों को कभी भटकने नहीं देता, अपनी प्रजा को कभी अपने पास से अलग नहीं होने देता। Our faith should be in the person of the Lord Jesus Christ, not in a fellowship, not in a church, not in a group, not in any, like I said, any fellowship of God's people, but in the Lord Jesus Christ. और हमारी जो पहचान है, हमारी जो जड़ होनी चाहिए, वो किसी कलीसिया में, संस्था में, लोगों में, अगुओं में नहीं, पर हमारी जड़ जो है प्रभु यीशु मसीह में होनी चाहिए, उसमें हम पकड़ते जाना चाहिए। When the Israelites came from Egypt, the Lord spoke about them to Isaiah in Isaiah chapter 5 verse 1 to 7. जब इजरायली लोग मिस्र से वापस आए, तो यशायाह उसका 5वां अध्याय पहली 7 आयतों में परमेश्वर उनसे बोलता है, How he brought a wine out of Egypt, he cleared the land for it, built a winepress wall, looked for grapes, there were no grapes. He had to destroy the walls. और वो कहता है, अब मैं अपने प्रिय के लिए और उस दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। और उसने कहता मैंने एक बारी लगाई और सब कुछ अच्छा किया, पर जब वो उसमें फल देखने आया, तो उसमें कुछ नहीं मिला। I refer to that wine as the people of Israel who came from Egypt. God expected them to bear fruit. They didn't bear fruit. और जो दाखलता है, उसको इजराइल के लोगों से तुलना की गई है। और जब प्रभु उसमें फल देखने की कोशिश किया, तो उसमें फल कुछ दिखाई नहीं। And then God said, what more could I have done for my vineyard, for my wine? और फिर परमेश्वर बोलता है कि मैं ये अपनी दाख की बारी के लिए और क्या कर सकता था? I've done everything, but there's no fruit. मैंने तो इसके लिए सब कुछ कर दिया, पर कोई फल ही नहीं है। Then the psalmist spoke to God in Psalm 80 verse 8 to 17. और फिर भजन 80 उसकी 8 से आगे में परमेश्वर भजन लिखता है। भजन लिखने वाला कहता है, Lord, you brought a wine out of Egypt. You cleared the land for it, built a winepress, built a watchtower, and why have you destroyed the walls? वो कहता है, तुम मिस्र से एक दाखलता को निकाल लाया, अन्य जाति से निकाल लाया, उसके ऊपर चारों तरफ शहरपनाह लगाई, सब कुछ किया, फिर उसकी शहरपनाह को क्यों ढा दिया? Why did the bulls ravage this wine? तूने इस दाख की बारी को क्यों तबाह कर दिया? And the wine refers to the people of God who came from Egypt. और ये जो दाखलता है, ये मिस्र से आए हुए परमेश्वर के लोग हैं। In the New Testament, in John chapter 15, the Lord says, I am the one, you are my branches. और मत्ती 15वें अध्याय में, यूहन्ना 15वें अध्याय में प्रभु कहते हैं कि मैं दाखलता हूं और तुम मेरी शाखाएं हो। My father is a wine dresser. और मेरा पिता जो है वो किसान है। Today you and me are not the vine, we are only the branches. आप और मैं आज के समय में दाखलता नहीं है, हम तो सिर्फ उसकी शाखाएं हैं। Old Testament time, people of God by the vine. In Psalm 80, Isaiah chapter 5. New Testament, we are not the vine, we are only branches. The vine is Jesus. और पुराने नियम में, यशायाह में, और हमने देखा कि वो उस समय में जो है, भजन में भी हमने देखा कि वो उस समय दाखलता से उनकी तुलना की गई परमेश्वर के लोगों की। पर नए नियम में हम जो है दाखलता नहीं है, हम तो सिर्फ शाखाएं हैं। प्रभु यीशु मसीह have to abide in the vine to bear fruit. हमें फल लाने के लिए उस दाखलता में जुड़े रहना है। The responsibility of giving nourishing sap from the root, nourishing us with everything is from the Lord's doing. We only have to abide in Him. That's all.
और हमारे को उसमें से पोषण मिलना, उसमें से हमारे को ताकत मिलना, वो हमारा प्रभु सब कुछ करता है। हमें तो सिर्फ उस दाखलता में जुड़े रहना है। And apart from Jesus, we can do nothing today. और प्रभु यीशु मसीह के बिना हम आज के समय में कुछ नहीं कर सकते। So first and foremost, you ask ourselves, am I rooted in Christ? Is my faith in the person of Christ, or is it on fellowship, on people, on men of God, or women of God, or whatever? But is it on Jesus? और हमें अपने से आज ये प्रश्न पूछना है कि क्या मेरा विश्वास जो है, क्या मैं प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़े हुआ हूँ, या मैं किसी व्यक्ति में, किसी इंसान में, किसी कलीसिया में, अगुवे में, किस चीज में मेरी जड़ है। Not just rooted, but built up in Christ. और ना केवल जड़ पकड़े रहें और उसमें बनते जाएं, परिपक्व हो जाएं। And the expression of that is that we, when we're rooted in Christ, we'll be friends of Jesus. और उसका पहचान ये है कि हम जो प्रभु के मित्र, प्रभु यीशु मसीह के मित्र बन जाते हैं। In John chapter 15, verse 15, he told the apostles, और यूहन्ना 15:15 में प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों को कहा, I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. तो कहता है कि मैं अब तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसके स्वामी क्या करता है। Instead, I've called you friends. परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। For everything I've learned from the Father, I have made known to you. क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी, वह सब तुम्हें बता दी। Verse 16. 16वीं आयत, You did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit that will last. और तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। Then the Father give you whatever you ask in my name. कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। Put these two verses together, we'll understand that for us to bear fruit, it must come from being a friend of Jesus. अगर इन दोनों आयतों को एक साथ जोड़ के हम समझें तो हमें समझ में आता है कि फल लाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह का मित्र होना जरूरी है। Which means we depend upon him for everything, not on fellowship, not on people, but on the Lord Jesus Christ. और उसका अर्थ ये है कि हमें हर बात के लिए प्रभु यीशु मसीह पे निर्भर रहना है, ना किसी व्यक्ति पे, ना किसी कलीसिया पे, ना किसी अगुवे पे। He wants us all to bear fruit in whatever good that we do. और परमेश्वर चाहता है कि जो कुछ भी हम करें, जो भला काम करें, उसमें हम फलवंत हों। Now we all know that we are saved by grace, we are not saved by works. और हम सब जानते हैं कि हमारा उद्धार अनुग्रह ही से हुआ है, हमारे कामों से नहीं हुआ। Ephesians chapter 2, 8, 9 says, it's by grace you've been saved through faith. This is not from outside, it's a gift of God, not by works that no one can boast. इफिसियों 2, 8 और 9 में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। 10th verse says, for we are God's workmanship, created in Jesus Christ to do good works which God prepared in advance for us to do. और 10वीं आयत में कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए करने के लिए तैयार किया। We are not saved by good works, we are saved by faith, but because we are saved by faith, we are called to do good works. और हम भले कामों से उद्धार नहीं हुआ, हमारा उद्धार तो विश्वास से हुआ, और क्योंकि हमारा उद्धार विश्वास से हुआ, हमें बुलाया गया कि हम भले काम करें। In the good works we are called to do, we are called to bear fruit. और भले काम करने के लिए हमें बुलाया गया है कि और हम फल, ताकि हम फल लाएं। Now we are all called to bear fruit. John 15:60, we are all called to do good works. और हम सबको फलवंत होने के लिए बुलाया गया है, और हम सबको बुलाया गया है कि हम जो है भले काम करें। Again, put these two together, we are called to bear fruit in every good work. और इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो हमें फल लाने के लिए बुलाया गया है, फल लाना हर भरे काम में। For that we need the wisdom of God. और उसके लिए हमें परमेश्वर की बुद्धि की जरूरत है। In Colossians chapter 1 from verse 9, the apostle Paul shares his prayer for the church in Colossae. और कुलुसियों पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत में हम देखते हैं पौलुस जो है कुलुसियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है। For this reason, since the day we heard about you, we not stop praying for you, asking God to fill you with the knowledge of his will through spiritual wisdom and understanding. इसलिए जिस दिन से यह सुना कि तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकता कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। Today, Jesus anoints us with the Holy Spirit, and through that we get the word of wisdom and the wisdom to be filled with the knowledge of God's will.
और हमें परमेश्वर की आत्मा हमें मिला है और उसके द्वारा से हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं, उसकी इच्छा को जान के उसकी उसमें चल सकते हैं। This is one of the prayers of the Apostle Paul for the church in Colossae. और ये पौलुस की प्रार्थना यहाँ पे हम देखते हैं कलूसियों की कलीसिया के लिए। And then he goes on to explain why he's praying like this. What is the purpose of them being filled with the knowledge of God's will through spiritual wisdom and understanding? और फिर वो यहाँ पे आगे समझाता है कि क्या ये परमेश्वर के ज्ञान में तृप्त होके कैसे उसकी पहचान में बढ़ना है, उसको आगे वो समझाता है। He said, we pray that we live lives worthy of God, वो कहता है कि ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो pleasing Him in every way, और वे हर सब प्रकार से प्रसन्न हो bearing fruit in every good work, और तुम हर प्रकार के भले कामों का फल लगे में फल लगे, growing in His knowledge and being strengthened with all power according to His glorious might. और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। And joyful giving thanks to the Father who has qualified you to share the inheritance of saints in the kingdom of light. और यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखाते जाओ कि पिता का धन्यवाद करते रहो। Having great endurance and patience. और जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति के पवित्र लोगों के साथ मिराज के सहभागी और धैर्य के साथ सहनशीलता के साथ। To bear fruit in every good work, we need to be filled with the knowledge of God's wisdom, which Jesus gives us through the Holy Spirit. और इस सब भले कामों में फलवंत होने के लिए हमें परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिए और ये ज्ञान जो है परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा से हमें देता है। Again, this wisdom is hidden in Christ. और ये ज्ञान जो है फिर से हम देखते हैं ये प्रभु यीशु मसीह में छुपा हुआ है। This is not worldly wisdom, this is God's wisdom. ये कोई संसारिक ज्ञान नहीं है, परमेश्वर का ज्ञान है। 1 Corinthians 2:7 says, God's wisdom is secret and it is hidden. और पहला कुरिन्थियों 2:7 में लिखा है कि ये परमेश्वर का जो ज्ञान है ये गुप्त ज्ञान है, भेद रीति पर बताते हैं और ये परमेश्वर की महिमा के लिए ठहराया गया है। Where is it hidden? ये कहाँ छुपा हुआ है? Colossians 2:3 says, in him, meaning in Christ, are hidden the treasures of wisdom and knowledge. और कुरिन्थियों 2:3 में लिखा है जिसमें बुद्धि और ज्ञान का सारा भंडार छिपा हुआ है, जिसमें मतलब प्रभु यीशु मसीह में। So being rooted and built up in Christ means depending upon him for everything we need to do in our Christian walk. और उसमें जड़ पकड़ते रहना, फलवंत होना, उसका मतलब हम प्रभु यीशु मसीह में हर बात पर निर्भर रहें अपने हर मसीह जीवन के चाल में। He gives us wisdom to be able to do what he wants us to do, and to be able to do it, he gives us strength. और परमेश्वर जो है हमारी सहायता करता है कि हम हर भले काम में करें और उस भले काम करने के लिए परमेश्वर अपनी सामर्थ भी हमें देता है। Ephesians 6:10 says, finally be strong in the Lord and in his mighty power. और इफिसियों 6:10 में लिखा है निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। With wisdom and strength, we can face every challenge, every crisis, every difficulty in life. और ये बुद्धि और शक्ति से हम हर समस्या का अपने जीवन में जो भी परीक्षा आती है उसमें हम उसका सामना कर सकते हैं। We can overcome difficulties and reign in life. हम इन परीक्षाओं को, समस्याओं पर विजय प्राप्त करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। Whatever we are called to do, be it in our home situation, in our work situation, in a society, in the church, wherever we are called to bear fruit and be successful as God intends us to be successful. और चाहे हम कहीं भी हो, चाहे हम अपने घर में हो, समाज में हो, अपने ऑफिस में हो, कहीं पे भी हैं, वहां पे हमें परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाके उसमें हमें सफल होना है और बढ़ते जाना, फलवंत होना है। And this wisdom and strength is also manifested as we live by the scriptures. और ये बुद्धि समझ जो है तब भी हमारे जीवन से प्रकट होती है जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं। The Lord told Joshua in Joshua chapter 1 verse 8, प्रभु ने योशुआ को बोला, योशु पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत में, do not let the book of the Lord depart from your mouth. व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। Meditate upon it day and night and be careful to do everything in it, then be prosperous and successful. इसी में दिन रात ध्यान रखना, इसलिए कि जो कुछ उस पर लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। We know not just called to hear the word of God or read the word of God, we're called to do the word of God. हमें सिर्फ परमेश्वर के वचन सुनने और बोलने के लिए नहीं, पर हमें परमेश्वर के वचन को करने के लिए बुलाया गया। And the Lord exhorts Joshua not to leave this book of the Lord depart from his mouth, meditate upon it day and night,
Be careful, do everything there's in it, then be prosperous and successful. You'll be और very good. परमेश्वर यहोशू को बोल रहे हैं कि तू इस व्यवस्था की पुस्तक को अपने चित्त से उतरने नहीं देना, उस पर दिन रात मनन करना, उसके अनुसार चलना, तब तू सफल होगा। Before they entered the land of Canaan, through Moses, God spoke to the people of God and said in Deuteronomy chapter 4, verse 6, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसकी 6 आयत में प्रभु ने मूसा के द्वारा से इससे पहले कि कनान देश में प्रवेश करते उनको बताया, observe carefully all these commandments, for this will show your wisdom among the nations who will hear decrees and say, surely this great nation is a wise and understanding people. सो तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देश के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी, अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय ये बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। Not only that, 11th chapter of Deuteronomy verse 8, the Lord told them, और यही नहीं, व्यवस्था विवरण 11वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में प्रभु ने उनको बोला, observe carefully all these commandments, for this will give you strength to go and possess the land. परमेश्वर उनको कहता है कि तुम इन बातों को पकड़ के रखना, ताकि ये इससे तुम्हें बुद्धि मिलेगी, सावधान रहना, क्योंकि इसी से तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे को समझ देगा कि तुम उस भूमि को प्राप्त कर सको। Whatever we are called to do, we are called to use God's wisdom and God's strength to do it, then be successful and prosperous. और जब भी हम परमेश्वर की विधि को मानते हैं, उसकी आज्ञा को मान के चलते हैं, तब हम जो है परमेश्वर जो हमारे को बुद्धि देता है कि और हम सफल होते हैं। Now, for us to be successful, like I told you, wisdom and strength we need. Also, we need to be people who are hardworking. और इसके साथ साथ कि हमें बुद्धि और समझ और शक्ति की जरूरत है, हमें साथ साथ एक चीज की और जरूरत है कि हमें मेहनती लोग होना चाहिए। God's people are called to be diligent people, hardworking people, not lazy people. परमेश्वर ने लोगों को बुलाया है, उसके लोगों को जो कि मेहनती हों और ईमानदारी से काम करने वाले हों। Jeremiah chapter 48 verse 10 is written, woe to those who lax in doing God's work. यिर्मयाह 48:10 में लिखा है, शापित है वे जो यहोवा का काम आलस्य से करते हैं। Now, about King Hezekiah, Hezekiah was one of the godly kings in the history of Judah. और यहूदा के इतिहास में हिजकिय्याह राजा जो था, वो एक परमेश्वर का भय मानने वाला राजा था। There were 20 kings in Israel and 20 kings in Judah after David and Solomon. और दाऊद और सुलेमान के बाद यहूदा में 20 राजा हुए, और इजराइल जो उत्तरी भाग था उसमें भी 20 राजा हुए। Out of 40 kings, only 8 were godly kings. और इन 40 राजाओं में से सिर्फ 8 राजा थे जो परमेश्वर का भय मानने वाले थे। They were all kings of Judah in Jerusalem. और ये 8 जो थे यहूदा के और यरूशलेम में राज करने वाले राजा थे। One of them was King Hezekiah. उनमें से King Hezekiah, 2 Chronicles 31:21. दूसरा अध्याय 31 अध्याय 2 Chronicles 31:21 says about King Hezekiah, everything he undertook in the service of God, the obedience to God's commandments, he sought his God and worked hard, so he prospered. दूसरा इतिहास 31:21 में लिखा है, और जो काम उसने परमेश्वर के भवन की उपासना और व्यवस्था और आज्ञा के विषय में परमेश्वर की खोज में किया, वह उसने अपना सारा मन लगाकर किया और उसमें कृतार्थ भी हुआ। He sought his God, he worked hard, so he prospered. He was successful. Very simple. और उसने बड़ा साधारण सी बात है, उसने उसको परमेश्वर को खोजा और सारा मन लगाकर उसका काम किया और इसलिए सफल हुआ। This is the verse I give to students who are studying for exams or whatever any test you have to be successful. This simple formula 31:21 2 Chronicles. और भाई जो है, जितने भी विद्यार्थी जो परीक्षा में जाते हैं, उनको यही आयत परमेश्वर की ओर से देते हैं जो कि उन सफल होने के लिए, जो है दूसरा इतिहास 31 का 21वीं आयत। Seek God, work hard, you'll prosper. परमेश्वर को ढूंढो, मेहनत करो और तुम सफल हो जाओगे। Seeking God means seeking his resources, wisdom, strength, memory power, grasping power, skills, everything. Ask him. और परमेश्वर से मांगना मतलब परमेश्वर से सारे बुद्धि, समझने की बात को, कि जल्दी से बात को समझ लेना, ये सब, और उसको याद रखना, ये सब परमेश्वर से मिलता है। He gives his gifts to us because of his grace. और ये सारे दान परमेश्वर हमें देता है अपने अनुग्रह के कारण से। We are called to be rooted and built up in Christ to receive from him and not from people. He uses people to bless us, but the source of all our blessings is the Lord himself, not people. और परमेश्वर जो है, ये सारे दान जो है, आशीषें हमें देता है,
और लोगों के को प्रयोग करता है, पर हमारे को आशीष उसी से मिलती है, परमेश्वर से। People are channels of blessing, not source of blessings. जो लोग हैं वो स्रोत नहीं है, वो साधन है जिनको परमेश्वर प्रयोग करता है आशीष देने के लिए। God's people are channels of blessing, not the source of blessing. Source is always the Lord only. और परमेश्वर के लोग जो हैं आशीष का श्रोता नहीं होते, वो जरिया होते हैं, पर परमेश्वर जो है वो सारा उसका आशीष का स्रोत होता है। So for us to be successful, we need to receive strength from God, wisdom from God, strength to be able to work hard, not be lazy, and be diligent. And also we need skills to be effective in our work. और हमें परमेश्वर के कामों में फलवंत होने के लिए बुद्धि, सामर्थ, इसकी तो जरूरत है ही। उसके साथ साथ परमेश्वर के ज्ञान की हमारे को मेहनत करना है, और उसके साथ हमारे को एक निपुण होना भी बहुत जरूरी है परमेश्वर के काम के लिए। Skills again are given to us by God. और ये जो निपुणता है, जो गुण है, ये भी परमेश्वर ही हमें देता है। In the book of Exodus 31st chapter, we read about Bezalel. He was anointed by the Holy Spirit with skills in all kinds of craftsmanship. और निर्गमन 31 में हम देखते हैं बेजलेल के बारे में कि उसको परमेश्वर ने बुद्धि दी थी, प्रवीणता दिया था, ज्ञान दिया था, सब कामों की समझ दी थी। Romans chapter 8 verse 30 says, those whom he calls, he justifies. और रोमियो 8:30 में लिखा है, जिनको उसने पहले से बुलाया है उनको धर्मी भी ठहराया। If he's called us to bear fruit in every good work, he will justify the calling by giving us the resources to do it. अगर उसने हमारे को भले काम करने के लिए बुलाया है, तो हमारे को साधन भी देगा जिसके कारण से हम उन कामों को पूरा कर पाएं। Even skills are given to us by God. ये सारे गुण जो है, निपुणता भी परमेश्वर हमारे को दान के रूप में देते हैं। I'm always amazed how when David wanted to build the temple in Jerusalem, God told him he won't build the temple, his son Solomon will build the temple. तो बड़ी अद्भुत बात लगती है जब दाऊद परमेश्वर के लिए मंदिर बनाने की इच्छा रखता था, परमेश्वर ने उसको बोला कि तू इस मंदिर को नहीं बनाएगा, तेरा बेटा सुलेमान इस मंदिर को बनाएगा। But God gave David a consolation prize. और दाऊद को परमेश्वर ने एक तोहफा दिया जो कि एक तरह से उसको तसल्ली देने वाला। God didn't make him builder, he made him the architect. उसको परमेश्वर ने उसको बनाने वाला तो नहीं बनाया उसको, पर उसका जो पूरा लक्ष्य बनाना था वो बनाने वाला उसको बना दिया। In First Chronicles 28:12 we read, और पहला इतिहास 28 उसकी 11वीं आयत में हम पढ़ते हैं, 12वीं आयत में, David gave Solomon all the plans the Spirit had put in his mind for the temple courts, for surrounding rooms, for the treasuries. तब दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को मंदिर के आसरे, कोठरियां, भंडार, अटारियां, भीतरी कोठरियां, प्रायश्चित के ढकने का, स्थान का, सब का नमूना दिया। The Holy Spirit put in the mind of David the plans for the temple. और पवित्र आत्मा ने दाऊद के बुद्धि में, समझ में जो मंदिर का नक्शा होना चाहिए था वो उसके बुद्धि में डाला। Please remember, the anointing will teach us all things. और इसको याद रखें कि अभिषेक जो है हमारे को सब बातें याद दिलाता है। 1 John 2:27 says the anointing will teach you all things. पहला यूहन्ना 2:27 में लिखा है कि ये अभिषेक जो है हमारे को सब बातें सिखाएगा। The Holy Spirit doesn't not only know the Bible, he knows everything. और पवित्र आत्मा ना केवल बाइबल को ही जानता है, वो सब बातों को भी जानता है। And he put in the mind of David the plans for the temple, the architecture. और उसने दाऊद की बुद्धि में सारा नक्शा जो था इस मंदिर का वो उसके बुद्धि में डाल दिया। So David was not called to be the builder, but the plans were given to him. तो दाऊद को उसको बनाने वाला नहीं बनाया, पर सारा उसकी योजना जो थी वो उसको बताई गई। So whatever you are called to do, we have to seek his grace, wisdom, strength, memory power, grasping power, the skills and the power and the hard work to do it. And of course, in the end, you will be successful because God wants us to be successful. तो जो भी काम है परमेश्वर में देता है, चाहे उसमें हमारे को बुद्धि, समझ, सामर्थ और सारी समझ जो भी बातें हमारे को चाहिए, उसके साथ साथ परमेश्वर हमारे को निपुणता भी देता है ताकि, और उसमें गुण देता है ताकि हम उसमें सफल हो सके। And when we are successful, we are called to always glorify the Lord, not glorify ourselves. और उन सब में जब हम सफल होते हैं तो उसमें महिमा हमें अपने प्रभु को देनी है, अपने आप को महिमित नहीं करना है। God had told the Israelites how when they obeyed the Lord, they will possess the land in the land of Canaan. परमेश्वर ने उनको बताया कि कैसे वो जो सफल होंगे तो कनान देश के स्वामी बन जाएंगे। But he also gave them a caution. उनके साथ एक चेतावनी भी दी उसको। The book of Deuteronomy
8th chapter, 17, 18. व्यवसाय 8वां अध्याय 17-18 में उस चेतावनी को हम देखते हैं। You may say to yourself, my power and the strength of my hand has produces wealth for me. और कहीं ऐसा ना हो कि तुम सोचने लगो कि यह संपत्ति मेरी सामर्थ और मेरी भुजबल से मुझे प्राप्त हुई। But remember the Lord your God who gives the ability to produce wealth. परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा का स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है, इसलिए देता है। Ultimately, the Lord enables us to bear fruit. Please always glorify the name of Jesus and use the gifts He's given you to build up people and to glorify the Lord. तो जब भी परमेश्वर हमें सफल करता है और हमारे को ये अपने इन दानों से हमारे को दे के हम जब सफल होते हैं, तो उसका सारा श्रेय हमें परमेश्वर को देना है और उस दान से हमें लोगों को और दूसरे लोगों को भी बनाना है। This success, not success in the eyes of people, but success in the eyes of the Lord. और ये सफलता जो है मनुष्य की आंखों में वाली सफलता नहीं कि मनुष्य की नजर में, पर परमेश्वर की नजर में सफल होना। That means we do whatever He's called us to do, work sincerely, honestly, efficiently, and work hard. और ताकि जो भी परमेश्वर ने हमारे को जिस काम के लिए बुलाया गया उसको मेहनत से, ईमानदारी से, पूरी लगन के साथ करें। May God give us the wisdom to always be rooted and built up in Christ. And as we built up in Christ, we'll bear fruit for the Lord to glorify His name and edify His people. परमेश्वर में सहायता करे कि हम परमेश्वर में फलवंत और बलवंत होते जाएं, ताकि जब उसमें उसके काम में सफल हों, तो उसके द्वारा से हम लोगों परमेश्वर को धन्यवाद दें और लोगों को भी उसमें उस अपने साथ उनको बनाएं। May God bless you all. परमेश्वर सबको आशीष दे।